Alaikum. This is our second session of today from 2 to 5 of artificial intelligence. I just started the meeting, waiting for the students to join, then I'll start. Alright, so Ali Heather, you have joined. Kindly tell me if my voice is clear. There are a few things that I wanted to discuss with the whole class, but mostly I don't see the whole class attending the sessions. It's always some students missing. So anyways, because I've been saying this since last few classes that you should make this a practice to watch the videos, especially some of the parts, or at least tell your fellow students about the things that happened in the class, so that they can be felt updated with what is going on in our course, especially because this is a summer semester. Obviously then we have to manage the class timings accordingly, because and as well because this is an online session, तो उसमें भी ज़्यादातर हमें टाइमिंग का देखना पड़ता है, because we can manage a lot of classes in a single week, and we have been doing that, because by the next week I think the university will again open, and it's unclear that our classes will be online or physical. Still we are very much farther in our course, not in our course but in our classes, but we have to manage the course contents in an effective manner. This is why I did not wait in the last class as well, when the students were reluctant to join, and when they joined I was right in the middle, but there are recordings of everything. So एक क्विज हमारा हो चुका है, and I have planned at least 2 quizzes, 2 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं if the time allows. Similarly 2 assignments मैंने जो है plan की हैं, but probably अगर हम वो assignments 2 के बजाय 3 ले लें तो that would be a plus as well. So I'm telling these things so that you can communicate to all of the students as well. एक असाइनमेंट मैंने ऐड कर दी है आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर ऐड कर दी है. आई विल ऑल्सो शेयर दैट असाइनमेंट ऑन व्हाट्सएप एज वेल, बट आई फर्स्ट वांटेड टू अनाउंस दैट असाइनमेंट इन द क्लास, और उसके बाद फिर आपको आई विल शो यू देयर. असाइनमेंट कहाँ रख दी? लेट मी ओपन द असाइनमेंट. यस, यही एग्जैक्ट असाइनमेंट मैंने शेयर की है गूगल ड्राइव के ऊपर. यू कैन सी इट देयर एज वेल. और अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया. लेट मी शेयर द स्क्रीन. hopefully the screen is visible to you. Okay, this is your assignment number 1 of this course, artificial intelligence. The last date for this assignment is pretty soon, 22nd of August. You will get around 3 to 4 days to do this. So at the end of this week, before Sunday, by Sunday, you need to send the solution of this assignment to this email address that we have been using for our communication, aisummer2021smiu@gmail.com. The problems are these. Problem number 1 is this, problem number 2 is this, and problem number 3 is this. I will just quickly explain this assignment. Problem number 1 is consider a state space where the start state is number 1. It's very important that you listen and understand all of these things very, very carefully. Okay, so problem number 1 is that consider a state space where the start state is number 1 and each state k has 2 successors, number 2k and 2k plus 1. तकरीबन 1-2 शुरू के जो सवाल हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये जब मैं आपको क्वेश्चन अब समझाऊंगा, ए बी सी पार्ट तो तकरीबन सॉल्व हो ही जाएंगे. But I want you to understand all of this question, because these kinds of questions you will encounter in your exams and multiple assignments and quizzes.
from here on out. So what this thing is saying, it's saying that consider a state space where the start state is number 1. Start state is what? 1. That one number is your start state, and each state k, कोई भी state k है अगर, has two successors number 2k and 2k plus 1. यानी कि अगर कोई state है k, तो वहाँ से आप दो जगहों पर जा सकते हैं, या तो 2k पर या 2k plus 1 पर. स्टार्ट स्टेट इज़ 1, तो 1 से आप कहाँ जाएंगे? बिकॉज 1 इज़ k हेयर, k की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वी कैन गो फ्रॉम 1 टू वेयर 2k and 2k plus 1, which is 2 into 1 and 2 into 1 plus 1. The value of k for the start state is 1, and you can go from 1 to 2 because 2 into 1 is 1 and 2 into 1 plus 1 is 3. 1 से आप या तो 2 पर जा सकते हैं या फिर 3 पर जा सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं भाई k की वैल्यू है 16, द नोड्स वैल्यू, द स्टेट्स वैल्यू, द स्टार्टिंग स्टेट है या कोई भी स्टेट है उसकी वैल्यू है लेट्स से 16, तो 16 से हम कहाँ जा सकते हैं? 16 से हम एक तो जा सकते हैं 2 इंटू 16 विच इज़ 32, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 33, 2 इंटू 16 प्लस 1. सो देयर विल बी 2 चिल्ड्रन ऑफ 16, one will be 32, one will be 33. So this is the consider a state space where the start number is 1 and each state k has two successors. Hopefully यहाँ तक बात clear होगी. Now the questions are draw the portion of the state space for states 1 to 15. 1 से लेके, यानी ये start state 1 है, ड्रॉ करना शुरू करें. हर नोड के चिल्ड्रन लिखते जाएं. हर नोड के दो दो चिल्ड्रन होंगे बिकॉज वी हैव सेट के कोई भी नोड है उसके दो चिल्ड्रन होंगे, तो हर नोड के दो दो चिल्ड्रन लिखते जाएं अनलेस यू हैव रीच्ड 15. 15 तक आपने लिखना है. जब आपको 15 मिल जाए आप वहाँ पर रुक जाएं और जितना आपने लिखा हुआ है दैट विल बी योर आंसर. सो आपने सिर्फ ड्रॉ करना है वो ट्री, वो ग्राफ जिसमें 1 से लेके 15 जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप एक्सप्लोर करते जाएं, एक्सपेंड करते जाएं नोड्स को. सो सपोज द गोल इज 11. अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ गोल 11 है, जब आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. फॉर एग्जांपल द गोल इज 11 फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट 1. द गोल इज 11, लिस्ट द ऑर्डर इन विच नोड्स विल बी विजिटेड. अच्छा 11 अगर गोल है, एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज जो कि हम ऑलरेडी तकरीबन पिछली तमाम क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं. द स्टार्ट स्टेट इज 1, द गोल स्टेट इज हेयर 11. So if the start state is 1, I will keep expanding the nodes unless I reach 11 which is the goal state. So आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने किस ऑर्डर में एक्सपेंड किया अपनी नोड्स को अगर आप ब्रेडथ फर्स्ट सर्च लगाते हैं तो, और आपने ये भी बताना है डेप्थ लिमिटेड सर्च अगर लगाते हैं तो उसमें क्या ऑर्डर होगा. नाउ डेप्थ लिमिटेड सर्च इज एल्गोरिथम जो कि एक्सप्लिसिटली क्लास में हमने स्टडी नहीं किया, बट इट इज़ एन एल्गोरिथम जो कि आपको बुक में गिवन है. इट्स जस्ट अ सिंपल वेरिएंट ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है पर थोड़ा सा वेरिएंट के साथ है ये विद लिमिट 3. अगर आप उस एल्गोरिथम को पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको डेप्थ लिमिटेड सर्च अप्लाई करने के लिए देयर शुड बी अ नंबर लिमिट गिवन टू यू, तो वो भी यहाँ पर गिवन है. और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च भी हम अलग से नहीं पढ़ा है, बट यू हैव टू लुक इनटू इट एंड राइट. ये किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि हमने लेक्चर्स में पढ़ी है. लेट मी रीआइटरेट टू यू अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज. रिमेंबर जब हम ये काम कर रहे थे हमने कहा था ये एक्सपेंशन ऐसे हुई है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में कि पहले एस हुआ फिर डी हुआ. ये चीज़ मुझे चाहिए कि अगर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च चलाता हूँ तो इसमें क्या होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाता हूँ तो इसमें क्या होगा, और सॉरी डेप्थ लिमिटेड सर्च विद लिमिट 3 एंड आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या होगा. क्वेश्चन नंबर सी ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज हाउ वेल वुड बाई डायरेक्शनल सर्च वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम. What is branching factor in each direction of the bidirectional search? You have to understand this question, but for that you have to learn what bidirectional search is. Remember, these are not very complicated things. These are just slight variants. जिस तरह हमने देखा ना UCS में भाई G of n यूज़ हो रहा है और greedy best first में H of n यूज़ होना शुरू हो जाता है. Algorithm सेम ही है, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं और उसकी बेस पे हम एक्सपेंडिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं. इसी वजह से इसी तरह ये भी बिल्कुल वही ब्रेडथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट ही हैं, बस थोड़े थोड़े वेरिएंट हैं इनके, चेंज है थोड़ा सा. ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं. ब्रांचिंग फैक्टर इज हाउ मेनी नोड्स अ नोड कैन हैव, यानी कि एक नोड के ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं. बाइनरी ट्री होता है तो उसमें एक नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते. So that is called a branching factor. The branching factor of a binary tree is 2. The branching factor of a tertiary tree is 3. The branching factor of 6 array tree is 6, and so on.
Now, does the answer to C suggest a reformation of the problem that would allow you to solve the problem of getting from state 1 to a given goal state with almost no search? This is a question you have to understand and solve on your own. Now, call the action going from K to left. Let's suppose अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं K से 2K पर जाता हूँ, the path from K to 2K, let's suppose मैं इस मूवमेंट को कहता हूँ लेफ्ट, और अगर मैं 2K plus 1 पर जाता हूँ K से, तो इसको मैं कहता हूँ राइट. तो क्या आप कोई ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं जो कि सिर्फ ये फाइंड करके दे दे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किस तरह पहुंच सकते हैं विदाउट एनी सर्च एट ऑल? ब्रेथ फर्स्ट भी ना लगाना पड़े, डेप्थ फर्स्ट भी ना लगाना पड़े, आपको बस मैं गोल स्टेट बताऊं और आप बस मुझे ये, आपका एल्गोरिदम मुझे ये बता दे कि यू हैव टू डू लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड यू विल बी ऑन द गोल विदाउट इवन सर्चिंग फॉर कि 11 कहाँ है और 12 कहाँ है और 15 कहाँ है. So you, if it's possible, you need to design this algorithm. The next two problems are very simple. Problem number 2 is give an example of each of the following environments, and for each environment what progresses have been done in the field of artificial intelligence up till now. आपने इन सब environment की एक example देनी है जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लासेस में. हर एक environment की एक example दें कि this is an example of stochastic environment, this is an example of discrete environment and so on. और आपने ये भी बताना है कि हर एक environment में अब तक यानी कि जुलाई ऑफ 2021 तक कितनी जो है अपडेट हो चुकी है इस environment में, लेटेस्ट काम क्या हुआ है. और प्रॉब्लम नंबर 3 इज कि पीस डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है इन तमाम एजेंट्स की. स्पैम फिल्टर की तो आई थिंक स्लाइड्स में भी गिवन है पीस डिस्क्रिप्शन. एक टेनिस प्लेइंग एजेंट की आपने लिखनी है पीस डिस्क्रिप्शन, और एन एजेंट दैट बिड्स इन एन ऑक्शन, जो एक नीलामी में बोली लगा रहा है एक, उस एजेंट की भी आपने पीस डिस्क्रिप्शन लिखनी है. तो दिस इज द असाइनमेंट नंबर 1 फॉर यू गाइज. द ड्यू डेट फॉर दिस असाइनमेंट इज August 22nd, which is this Sunday I think. Please tell the other students as well. After the due date I will accept the assignment, but there will be consequences. I will be deducting some marks from your obtained marks. So by each passing day I will be deducting 1 mark. So if you submit the assignment after 3 days, you will be penalized 3 marks. So that's about it. If there is any question you can ask me, Ali Haider. Otherwise let's just move on to our our lecture that we were discussing. Alright, so let's move on to our lecture. लास्ट क्लास हमने जो सुबह ली उसमें हमने यही बात की कि यू कैन एक्सपेंड, अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो यू कैन राइट द एक्सपेंशन ऑर्डर ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट और टुवर्ड्स अ फ्यू गोल स्टेट्स. सो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने ये कहा कि इट यूजेस दीज नंबर्स, जिसको हमने कहा कि एच ऑफ एन, एंड द एल्गोरिदम वाज UCS, जो कि हम इससे पहले यूज़ कर रहे थे, वो G ऑफ एन को यूज़ कर रहा था. G ऑफ एन को हमने कहा कि G ऑफ एन इज़ द कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट, टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड H ऑफ एन को हमने कहा द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम दैट स्टेट टू द गोल स्टेट. तो ये 2 चीज़ें थी जिसकी बेस के ऊपर हमने डिसाइड किया. दिस वाज UCS. evaluation function of greedy best search was H of n, and this is the estimated cost of reaching goal from that particular node. And the evaluation function of uniform cost search, which is an uninformed search, is G of n, जिस पे हम last 2 classes से बात कर रहे हैं. It is the cost of reaching n from the start state. So अगर आप इन numbers को देखते हुए decide करते हैं कि which nodes should be expanded first, then you are applying the uniform cost search. And if you look at the H of n, H of A, H of B, or whatever nodes value, the heuristic value of the node, and decide which node to be expanded next, then you are working on the greedy best first search algorithm. Now moving on from all of this to our next slide. इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि you need to do this for the UCS as well. So hopefully if you haven't, you need to do that. So properties of a greedy best search.
क्या ये कंप्लीट है या नहीं, क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं, वही 4 क्राइटेरिया देखते हैं. But we can see here that greedy best first search is not a complete algorithm. Complete किसे कहते हैं? Complete ऐसे algorithm को कहते हैं which guarantees कि it will find the solution if it exists. तो greedy best first search वो algorithm है, हमें ये पहला algorithm अभी मिला है जो कि complete नहीं है, which means कि अगर गोल एग्जिस्ट कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि ये गोल को वाकई ढूंढ के भी दे देगा. कैसे नहीं ढूंढ के देगा? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से आप नीचे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्टार्ट स्टेट इज दिस वन एंड द गोल स्टेट इज दिस वन. सो लेट्स स्टार्ट रनिंग फॉर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च. ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है? एच ऑफ एन को यूज करता है एंड एच ऑफ एन इज व्हाट? दिस वन. यहाँ पर देख लेते हैं, चलें. एच ऑफ एन इज दीज वैल्यूज 366 0 एंड सो ऑन. सो अगर इसमें देखें आप तो इस स्टार्ट स्टेट की जो कौन सी वैल्यू कह रहे थे हम? एच ऑफ एन वैल्यू है, वो क्या है? दिस इज LASI राइट, या IASI. सो IASI की वैल्यू है 226. सो आई विल यूज दिस नोट पैड टू राइट दीज थिंग्स. स्टार्ट स्टेट की एच वैल्यू है जी, एच वैल्यू ऑफ स्टार्ट स्टेट विच वॉज आई से कोई शहर था, दैट वॉज 266. अच्छा, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ बिकॉज स्टार्ट स्टेट इज दिस ओनली. आपके फ्रंटियर में सिर्फ एक ही नोड है, तो आप आई को एक्सपेंड करेंगे. जब आप आई को एक्सपेंड करते हैं तो आई से आप 2 जगहों पर जा सकते हैं, एक तो इस प्लेस पे जो एन से स्टार्ट हो रही है और एक इस प्लेस पे जो कि वी से स्टार्ट हो रही है. तो यानी कि आपने फ्रंटियर में आई को मिटाकर, दिस वॉज योर फ्रंटियर जहाँ पे पहले स्टार्ट स्टेट थी सिर्फ आई. अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ बिकॉज देयर इज़ ओनली वन चांस, वन चॉइस, सो मैं एक लिख देता हूँ ये और एक लिख देता हूँ ये स्टेट. ये 2 स्टेट्स, यहाँ से आप इन 2 स्टेट्स पर जा सकते हैं. जो ये स्टेट है इसकी एच ऑफ एन वैल्यू है क्या? 234. इट्स वैल्यू इज 234. और जो दूसरी वैल्यू है, जो दूसरी नोड है आपके फ्रंटियर में, एच ऑफ वी की वैल्यू है 199. सॉरी 199. ठीक है जी. अच्छा, इन दोनों में से क्या सेलेक्ट होना चाहिए? जल्दी से मुझे बता दें कि इन दोनों में से कौन सी नोड को मैं एक्सपेंड करूं? एन और वी में से मैं किस नोड को एक्सपेंड करूं? एन को, बिकॉज उसकी नो एच ऑफ एन है ना. एच ऑफ एन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गोल फ्रॉम दिस स्टेट. द एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि अंदाज़ा ये है कि अगर मैं एन को लेता हूँ तो यहाँ से गोल इतना दूर है, और अगर मैं वी को लेता हूँ तो अंदाज़न यहाँ से गोल इतना दूर है. तो मैं उस नोड को पिक करूँगा जहाँ से गोल करीब है. तो 199 इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द गोल, सो आई विल चूज़ वी. मैं इस सिटी को एक्सपेंड करूँगा. तो जब मैं वी को एक्सपेंड करता हूँ तो मैं वी को निकाल के और वो 2-3 शहर लिखूंगा जहाँ पे आप वी से जा सकते हैं. तो वी से आप यहाँ जा सकते हैं, या तो आप इसी नोड को लिखें दोबारा, यानी कि आप वी से दोबारा या तो यहाँ जा सकते हैं IASI पे, द सिटी विच वॉज आई, एंड या तो आप यहाँ से इस सिटी पे जा सकते हैं, द सिटी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू. सो एन की तो वैल्यू हमें पता है. एच ऑफ आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है? एच ऑफ आई की वैल्यू है 226 और एच ऑफ यू की वैल्यू है 80. ठीक है जी. अच्छा, अब इन तीनों में से क्या एक्सपेंड होना चाहिए? इन तीनों में से एन आई और यू में से, एन आई और यू में से यू को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट फ्रॉम द गोल. तो मैं अगर यू को एक्सपेंड करता हूँ विच मीन्स मैं यू को मिटाकर इसके चिल्ड्रन को लिख दूंगा. तो यू को अगर मैं मिटाता हूँ तो यहाँ से मैं 2 जगहों पर जा सकता हूँ, या तो बुचारेस्ट या फिर HIRSOVA, the city which is starting from H and Bucharest. So एक तो या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ और या फिर मैं बुचारेस्ट पे आ सकता हूँ. राइट. सो इस तरह से हम चलते रहेंगे. देर इज़ अ थिंग जो कि मैं फॉलो नहीं कर पाया यहाँ पे, एंड दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड बाय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इज दैट कि अब ये मैंने गलती की है तो मैं ये गलती समझा रहा हूँ आपको कि ये गलती क्यों हुई है, और ये आप भी कर सकते हैं. तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि मैंने किया क्या है.
मैंने यहाँ से उठ के यहाँ जाने के लिए, स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की, यानी कि मैंने ये कहा कि एच ऑफ आई इज दिस, जबकि एच ऑफ आई ये नहीं है। ये एच ऑफ आई तब है जब आपकी स्टार्ट स्टेट एरिड हो और गोल स्टेट बुचारेस्ट हो। रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो आपकी गोल स्टेट होगी वहां से आपकी एच ऑफ एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर स्टिल ऑन द गोल स्टेट। हाउ मच कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फ्रॉम गोल स्टेट टू गोल स्टेट, क्या एस्टिमेशन है? तो गोल स्टेट से गोल स्टेट जाने की तो एस्टिमेशन भी यही है कि 0 कॉस्ट लगेगी। तो अगर आपकी गोल स्टेट यहां पर चेंज थी विच इज फगारस, तो यहां पर फगारस की वैल्यू एच ऑफ फगारस जो है वो 0 होना था, जबकि आई वॉज पिकिंग द एच ऑफ एन वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स के एरिड यहाँ है और बुचारेस्ट यहाँ है। तो अगर लेट्स से कि ये वैल्यूज थी तो बुचारेस्ट की वैल्यू 0 इस वजह से है क्योंकि बुचारेस्ट से गोल 0 पर है, बिकॉज द गोल इज बुचारेस्ट, बट इन दिस सिचुएशन द गोल इज फगारस, so the value of h of Fagaris should be 0. So the all of the values that I was using here were not good, were not fit for this specific problem जहाँ पर आपकी starting state ये है और goal state ये है। So what I'm saying is कि greedy best first से अगर आप चलते हैं so it can get stuck in loops। तो अगर आप इसको start state लें और इसको goal state लें तो it seems like कि यहाँ से इस चीज़ को समझाने के लिए चले मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि what do you mean by this h of n? this h of n का मतलब क्या है? हमने ये कहा कि arid से it will just take 5 minutes if you understand very very carefully. This is an estimation of goal from this particular node। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि arid से गोल 366 किलोमीटर्स दूर है। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर्स हम कह लेते हैं इनको। इस जगह से अज्यूम हम ये कर रहे हैं, एस्टिमेट ये कर रहे हैं कि हमारा गोल 176 किलोमीटर्स दूर है। अब ये वैल्यूज हमने निकाली कैसे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये वैल्यूज निकालना इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिकॉज ये असल वो बुनियाद है जो कि इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स के पहिए को चलाती है। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें लेट्स से कि भाई सीपीयू से मेरा गोल कितना दूर है, तो अगर मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं मैं सिर्फ एज अ ह्यूमन, आपको क्या लगता है कि ये गोल जो बुचारेस्ट है ये यहां से ज्यादा दूर है, वो सिटी जिसका नाम सी से आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर है, ये यहां से ज्यादा दूर है बुचारेस्ट या सीपीयू से ज्यादा दूर है? क्या लगता है आपको? अंदाजन, कैलकुलेट नहीं करना कि अच्छा यहां से 138 है, अंदाजा पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करने लग गए इसका मतलब है आप चले गए वहां पे। आपने जाना नहीं, आपने सिर्फ देख के बताना है कि सीपीयू से ज्यादा दूर है या दिस सिटी क्रायोवा से ज्यादा दूर है। व्हाट डू यू थिंक? आपको लग रहा है कि क्रायोवा से ज्यादा दूर है। नाउ दिस वाज जस्ट एन एस्टिमेशन। हो सकता है कि सीपीयू से ज्यादा करीब हो, क्रायोवा से दूर हो जाए। वी कांट बी श्योर कि एक सर्टेन चीज कितनी दूर है, इसलिए हम ह्यूरिस्टिक यूज करते हैं। हमने कैसा एस्टिमेशन लगाई? हमने सिर्फ देखा, आंखों से देखा और हमने कहा कि यार ऐसा ऐसा लग रहा है कि शायद यहां से दूर हो। अब आप अगर इस सिटी में मौजूद हैं, यू आर इन दिस सिटी विच मीन्स यू कांट सी कि यहां से कितने रास्ते निकल रहे हैं और कहां से कितनी चीज कितने करीब है। यू विल यूज अ ह्यूरिस्टिक, यानी कि आप एस्टिमेट करेंगे कि यहां से वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी या कितनी कॉस्ट है। जैसे कि कराची जो है, कराची से इस्लामाबाद का फासला है तकरीबन कितना है? 1500 किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट, 1000 किलोमीटर्स, मोर देन 1000 किलोमीटर्स कराची से इस्लामाबाद। कराची से दुबई का फासला उससे कम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई इंफॉर्मेशन इज राइट। द डिस्टेंस ऑफ कराची टू दुबई इज लेसर देन द डिस्टेंस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद।
If that's not correct, then assume that it's correct. अब इस्लामाबाद पहुंचने में you have to move in a like kind of a zigzag manner. But in order to move from Karachi to, let's say, Dubai, you will take the flying route or the water route, and it will move in a straight line. My point is कि अगर आपको कहा जाए कि estimate करें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो you will estimate in a straight line कि यार यहाँ से मुझे उस तरफ जाना है और इतनी दूर है वो जगह. बेशक वहाँ पर जाने के लिए आपको दो चार इस तरह के मोड़ लेने पड़े जो कि एग्जैक्टली उस जगह की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट इज कि अगर आप एरिड से बुचारेस्ट आते हैं तो एस्टिमेशन ये है हमारी कि एरिड से बुचारेस्ट ये स्ट्रेट लाइन इतना फासला होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इतना फासला होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. असल में फासला बेशक इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आपको ऐसे, अब जैसे यहाँ से सीबीयू से अगर हम आरवी की तरफ आते हैं तो यू आर सीइंग कि हम बुचारेस्ट की डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे. बुचारेस्ट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन हम उसके अपोजिट जा रहे हैं काइंड ऑफ. या सीबीयू की डायरेक्शन, फगारेस की डायरेक्शन में अगर जाते हैं सीबीयू से, तो अब भी हम देख रहे हैं कि हम अगर फगारेस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी आर नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बुचारेस्ट. सो एक्चुअल पाथ तो जो है यहाँ से वहाँ हो सकता है, बट in order to estimate a cost we will use a straight line distance कि भाई यहां से वहां तक का straight line distance क्या है, कितनी दूर है. क्योंकि estimation हम लगा रहे हैं तो straight line अगर हम find out कर लेते हैं कि भाई कराची से हैदराबाद का straight line distance है, let's suppose 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर. कराची से हैदराबाद का straight line distance अगर 100 किलोमीटर है तो इसका मतलब है हमने estimation लगाई है, असल फासला या तो इससे ज्यादा होगा या हो सकता है इससे कम हो. I will need your undivided attention here. अगर मैं कहता हूं कि कराची से हैदराबाद का स्ट्रेट लाइन फासला, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आऊं कराची से हैदराबाद, तो 100 किलोमीटर है, तो असल फासला इससे ज्यादा होगा या कम होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, या आप मुझे बताएं. अगर मैं ये कहता हूं कि कराची से हैदराबाद स्ट्रेट लाइन में अगर मैं आऊं तो 100 किलोमीटर का फासला है, तो असल फासला जो कि आप मोटरवे से जाते हैं फिर कोई और शहर आते हैं बीच में वगैरह वगैरह, असल फासला ऑब्वियसली गुड अली हैदर इससे ज्यादा होगा, बिकॉज यू नो कि स्ट्रेट लाइन इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. इट्स अ थ्योरम. But if you don't know about that theorem, still you know about the human intellectual level, and you know कि straight line से छोटा distance कोई नहीं हो सकता दो चीज़ों के दरमियान. Straight जाएंगे तभी आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा भी आप इधर उधर मूव हुए तो you will have to pay more, you will have to pay more time. So अगर मैं estimate करना चाहूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला कितना है, एक्चुअल फासला जितना भी हो, लेकिन अगर मैं एस्टिमेट करूंगा तो आई कैन यूज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई कराची से हैदराबाद स्ट्रेट लाइन में अगर आप जाएंगे तो 1000 किलोमीटर है. असल में हो सकता है 1200 किलोमीटर हो या 1400 किलोमीटर हो, राइट. सो जब भी आप एस्टिमेट करेंगे, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न, जब भी आप कोई चीज एस्टिमेट करने जाएंगे, किसी भी तरह की चीज का डिस्टेंस या कॉस्ट एस्टिमेट करने जाएंगे, तो आप हमेशा कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करेंगे. यू नो कि जब एक्चुअली आप अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट उससे ज्यादा होगी, लेकिन एस्टिमेट आप जब कर रहे होंगे तब वहां पर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे हमेशा. जिस तरह से अभी मैंने कराची हैदराबाद स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाली एग्जांपल ली आपको, भाई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में आप जाओ तो भाई 100 किलोमीटर है कराची से हैदराबाद, बट व्हेन यू ट्राई टू इंप्लीमेंट इट यू नो कि उससे ज्यादा ही आपका जो है वो डिस्टेंस होगा. दिस इज कॉल्ड अंडर एस्टिमेशन, अ वर्ड दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल द टाइम, बट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. इट सेज दैट बिफोर गोइंग टू a certain location, before paying that cost you should estimate that cost, and importantly you should underestimate that cost. ठीक है, अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे
इसकी 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 एग्जांपल ऐसे समझिए, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगली 10 स्लाइड में आपको दिखा दूंगा और आपको बात समझ नहीं आएगी फिर भी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो जो कि मैं आपको 3-4 एंगल से समझा रहा हूँ। आपने कराची से हैदराबाद जाना है, या लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, you want to go and explore northern areas or some tourist site, आपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया गया, ठीक है इतना इतना करते हैं। उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, जब आप दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं या किसी के भी साथ अगर प्लान बनाते हैं, तो आपको यार पर हेड खर्चा कितना आ जाएगा, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, राइट। सो पर हेड खर्चा कितना आ जाएगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ यार पर हेड 20,000 तक आ जाएगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ पर हेड 20,000 तक आ जाएगा। सो व्हाट विल यू डू, यू विल अरेंज 20,000 कि यार ये 20,000 है, ये मुझे ट्रिप पर जाना है घूमने के लिए, तो these 20,000 will be my expense। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा होने लग जाता है, ओवरऑल आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, जब आपने एक्चुअली इंप्लीमेंट किया, आप टूर पे गए, आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हुआ होगा, लेट्स से एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, इन अ रियल लाइफ वेरी एग्जाम्पल, जस्ट इन अ चिलिंग वे, कैन यू टेल मी कि अगर मैं कहता हूँ मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया, 20,000 हमने अंदाज़ा लगाया था लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया, कैन यू गेस कि कितना ज़्यादा खर्चा हुआ होगा? ना, जस्ट गिव मी अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ज़्यादा खर्चा हो गया कि भाई 20,000 एस्टिमेशन लगाया था हमने, बहुत सोचा था कि भाई यहाँ से वहाँ का किराया इतना, वहाँ पे इतने लगेंगे, इस चीज़ के इतने, इस चीज़ के इतने, हमने कहा 20,000 पर हेड लग गया, लग जाएगा, एस्टिमेशन हमारी ये थी, बट मैं आपको ये कहता हूँ यार ज़्यादा लग गया, राइट। यू आर सेइंग 25,000, आपने ये नहीं कहा कि यार 1 लाख लग गया, आपने ये भी नहीं कहा 50,000 लग गया, आपने कहा 25 लग गया। So because you underestimated the cost, इस पॉइंट को बड़ा गौर से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी डेली लाइफ में भी बड़ा काम आएगा। बिकॉज यू अंडर एस्टिमेटेड द कॉस्ट, आपने कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया था, आपने कहा था 20,000 में काम हो जाएगा, एस्टिमेशन कम थी, अंडर एस्टिमेशन थी, इस वजह से आपका खर्चा 25 का हुआ, ठीक है। अब अज्यूम करें अगर जाने से पहले मैंने ये सोचा होता कि मेरा खर्चा 30,000 का हो जाएगा, अगर मेरी एस्टिमेशन ये होती कि मेरा खर्चा 30,000 का हो जाएगा, देन यू शुड नो एज अ ह्यूमन, एज अ फेलो सिटीजन, यू शुड नो कि अगर मैं एस्टिमेट ये करता कि मेरा खर्चा 30,000 का होगा, 30,000 का होगा, यू नो कि मेरा खर्चा 25 से ज़्यादा ही होता। फिर अगर मैं ये सोच के निकलता कि मेरा खर्चा 30,000 होगा, तो यू नो कि मेरा माइंड इस तरह का बन जाता कि 30,000 के अंदर हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं 22 के बाद मैं बिल्कुल भी अपने उसमें वो नहीं रहता और मैं कहता है 22 तो कुछ भी नहीं है, 30 का सोचा हुआ है मैंने, 24 और खर्च कर लिए, 25, 26, 27, बेस्ट केस सिनेरियो 30,000 में मैं टूर कंप्लीट करके आ गया। सो विच इज अ बेटर स्टेटमेंट, द बेटर थिंग इज टू अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट। अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे ना कॉस्ट को, तो आप कम कॉस्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप ओवर एस्टिमेट करेंगे तो आप जितनी कॉस्ट कम हो सकती थी उससे ज्यादा कॉस्ट में भी जा सकते हैं। Not just a thing related to only artificial intelligence, or a thing related to your daily life intelligence, business intelligence, all of the things. अगर आप एस्टिमेट कम करें कि यार इतना खर्चा आएगा, आपको जहन में हो कि उससे ज़्यादा आ जाएगा, बट आप एस्टिमेट अगर कम करेंगे तो जितना ज़्यादा आएगा इट इज़ गोइंग टू बी द चीपेस्ट अमाउंट दैट यू कुड डू इन। लेकिन अगर आप ओवर एस्टिमेट कर देंगे तो वो बात अलग हो जाएगी। अगर आप ये कहते हैं, लेट्स सपोज कि यू आर गोइंग टू बाय अ शर्ट, और आप ये कहते हैं कि यार मैं 1,000 रुपये रख रहा हूँ, इसके अंदर मुझे शर्ट लेनी है, एक शर्ट लेनी है, 1,000 रुपये मैंने रख दिए, इसके अंदर मुझे एक शर्ट लेनी है, तो यू विल गो टू द मार्केट एंड यू विल बाय अ शर्ट। अगर लेट्स से आप 1,000 रख के गए तो हो सकता है 1,100 की आ जाए, हो सकता है 1,200 की आ जाए, राइट। लेकिन अब अगर आप ये सोचें कि यार आपने 1,000 नहीं रखे, आपने 10,000 रुपये रखे हैं एक शर्ट के, नाउ यू विल गो एंड स्टार्ट फ्रॉम 8,000, और अब आप कौन सी शर्ट ले रहे होंगे, आपने चूंकि 10,000 रुपये रखे हैं तो आप बोलेंगे यार 10,000 है तो 10,500 की मिल रही है, दैट्स ओके, इट्स काइंड ऑफ विद इन माई बजट, बट यू नो कि दैट शर्ट और अ शर्ट could have been bought within 1,000 rupees as well.
So whenever you are looking for the cheapest possible solution, I think that you need to write and put it in your wallet. Whenever you're looking for the cheapest possible solution, the best way is to underestimate the cost. Overestimate अगर आप करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको पता है कि जितना एस्टिमेशन करोगे उससे ज़्यादा ही होगा आपका खर्चा. तो why not underestimate it so that we can reach towards the cheapest solution. Understood? ये बात समझ में आई है? Because you know कि जितने एस्टिमेशन करेंगे उससे ज़्यादा ही खर्चा होना है, उससे ज़्यादा ही कॉस्ट लगेगी. So we should underestimate the cost so that we can reach to the cheapest possible solution. So this situation of underestimating the cost is known as, in the artificial intelligence, is known as a heuristic which should be admissible. जिस तरह आपने क्या एस्टिमेट किया कि भाई कराची से हैदराबाद जाने की कॉस्ट कितनी लगेगी, आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिया, बिकॉज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से कम कॉस्ट हो ही नहीं सकती. तो क्या किया आपने? अंडर एस्टिमेट किया. इतना अंडर एस्टिमेट किया, आपको पता है कि उससे ज्यादा ही लगेगी, लेकिन जितना अंडर एस्टिमेट हो सका आपने किया. एंड कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है कराची से हैदराबाद जाने का, विच यू नो इज नॉट पॉसिबल, बट आपने उसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में लिया. इसलिए लिया ताकि आप चीपेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन पर पहुंच सकें. तो एक ऐसा ह्यूरिस्टिक, अच्छा ह्यूरिस्टिक मुख्तलिफ भी हो सकते हैं. ये स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस, जिस तरह लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आप एक्स ऑफ ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वाई ऑफ ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एच ऑफ एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जी ऑफ एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आप इसी तरह स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसी तरह वाटर का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाटर के थ्रू जाएं तो कितना लगेगा टाइम. इसी तरह आप मल्टीपल और चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द बेटर heuristic value, the better function, the better heuristic function would be what? Would be the one which underestimates the actual cost. And that heuristic which underestimates the actual cost is known as an admissible heuristic. Is known as an admissible heuristic. So coming back to our slides, ये ऑप्टिमल है या नहीं, यू हैव टू, अब आपको अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन एज वेल, ये ऑप्टिमल भी नहीं है, बिकॉज इसने एरिड से बुचारेस्ट हमें जो फाइंड करके दिया था वो ये पाथ था. अभी लास्ट क्लास, अभी सुबह हम देख रहे थे कि इसने 450 वाला पाथ जो है वो हमें ढूंढ कर दिया था व्हेन वी वर सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू दीज ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. बट एक्चुअली 418 वाला पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा था. सो greedy best first search, although it uses an admissible heuristic, ये admissible heuristic तो यूज करता है, यानी एक ऐसा heuristic यूज करता है जो कि अक्सर कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन फिर भी ये हमें सही चीपेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं दे पा रहा. इस वजह से हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, एंड दैट इज ए स्टार सर्च. इट इज द फाइनल बॉस ऑफ दीज ऑल एल्गोरिदम्स. इससे बेहतर एल्गोरिदम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मल्टीपल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आप उसके बारे में दे सकते हैं, बट ऑन दिस लेवल, इन बैचलर्स लेवल, व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इंटेलिजेंट एल्गोरिदम, you won't find a better algorithm in graph search than A star search. If you keep changing the state space, then obviously A star would not work always as optimally. A star search क्या करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सिंपल करके बता रहा हूँ आपको, बहुत इस तरह कि आपको वो चीज़ याद भी रहे, एग्जाम में भी याद रहे और आपको हमेशा याद रहे वो चीज़. 3 चीज़ें हैं. यूसीएस देख के आए ना हम, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. इवैल्यूएशन फंक्शन क्या था उसका? इवैल्यूएशन फंक्शन का मतलब ये है कि वो किस बेस पर डिसाइड कर रहा था कि कौन सी नोड पहले एक्सपेंड होगी और कौन सी नोड बाद में एक्सपेंड होगी. क्या बेसिस थी उसकी? उसकी बेसिस थी जी ऑफ एन. वो जी ऑफ एन की बेस पे कर रहा था, यानी कि कॉस्ट सो फार टू रीच एन, स्टार्ट स्टेट से एन तक पहुंचने की कॉस्ट. जिसकी कम होती थी वो उसको एक्सपेंड कर देता था. ये यूसीएस था. फिर हमने अभी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट देखा जो कि एच ऑफ एन को यूज कर रहा था, जी ऑफ एन को यूज नहीं कर रहा था, एच ऑफ एन को यूज कर रहा था. और एच ऑफ एन क्या थी? एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल, कि भाई आप जहां पर हैं वहां से गोल कितना दूर है, एस्टिमेशन, जो कि अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे. ये ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट ये यूज कर रहा था. दिस वाज इन्फॉर्म्ड सर्च जो कि एच ऑफ एन यूज कर रहा था, बिकॉज ह्यूरिस्टिक तो खुद कैलकुलेट किया ना हमने, ह्यूरिस्टिक स्टेट स्पेस की इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं था. जबकि जी ऑफ एन यूसीएस यूज कर रहा था, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, विच इज एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी बिकॉज जी ऑफ एन वाज गिवन इन द स्टेट स्पेस सर्च. नाउ
ये यूसीएस यूज कर रहा था, अनइन्फॉर्म्ड कॉस्ट, अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये ह्यूरिस्टिक यूज कर रहा था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट। ए स्टार सर्च दोनों को ऐड करके यूज करता है। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा सिंपल करके कोई समझाएगा आपको। ए स्टार सर्च जो इवैल्यूएशन फंक्शन यूज करता है वो ना ही सिर्फ GON यूज करता है बाय जिस तरह यूसीएस यूज करता है, ना ही सिर्फ HOFN यूज कर रहा है जिस तरह ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट यूज कर रहा है, बल्कि दोनों को ऐड करता है। यानी कि वो ये भी देखता है कि अब तक इस नोड पर, n नोड पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है मेरी स्टार्ट स्टेट से अब तक, और ये भी देखता है कि यहां से गोल कितना ज्यादा दूर है। दोनों को ऐड करता है और फिर डिसाइड करता है कि भाई इन सब नोड्स में से मुझे कौन सी नोड देखनी चाहिए। एग्जैक्टली जिस तरह से मैं लास्ट क्लास में आपको इसमें समझा रहा था कि फंक्शन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी xn plus yn plus gn. A star uses this gn plus h of n. The evaluation function is the estimated total cost of path through node n to the goal. Now this is how A star works. Look at it. ग्राफ तो आप लोगों ने देख ही लिया और ये वैल्यूज भी आपको पता है कि यहां पर इस तरह से गिवन है। देखें, एरिड से स्टार्ट किया आपने, इसको मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं सो दैट आई कुड बी यूजिंग, या व्हाट इज 366? 366 इज द इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू एंड व्हाट इज दिस? दिस इज g of n plus h of n. g of n is 0 because the cost that you have paid in moving to arid from the start state is 0, क्योंकि दिस इज द स्टार्ट स्टेट, यू हैवंट पेड एनी कॉस्ट येट, सो दिस इज 0 प्लस यहां से गोल कितना दूर है 366, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ह्यूरिस्टिक, एक्चुअली इतना दूर नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा, बट इट्स एन एस्टिमेशन, एन अंडर एस्टिमेशन, सो प्लस 366, सो इट बिकम्स 366. किसको पहले एक्सपेंड करें? ऑब्वियसली एक ही चॉइस है आपके पास, यू विल एक्सपेंड इट. नाउ यहां पर आपके पास अब 3 ऑप्शंस आ गए. इन तीनों ऑप्शंस में से सीबीयू पे आप आ गए 140 कॉस्ट पे करके, फॉलो माय कर्सर, 140 कॉस्ट पे करके आप सीबीयू पे आए और सीबीयू से गोल ह्यूरिस्टिक जो है उसकी वैल्यू 253 है, सो इट बिकम्स 393. यहां पर आप 118 पे कर आए और 329 यहां से दूर है गोल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन दोनों को ऐड किया 447 और यहां पर आप 75 कॉस्ट पे करके आए एंड h of n of zerent is 374, इट बिकम्स 449. इन तीनों में से किसको एक्सपेंड करेंगे? 393, इट इज द लीस्ट वैल्यू. इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये चॉइसेस आ जाती हैं. नाउ इट इज़ वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू, यू विल बी डूइंग इट. आप जब तक एक्सरसाइज खुद नहीं करेंगे, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम में अगर ये सिर्फ सीख कर आ जाते हैं बगैर प्रैक्टिस के, तो रिमेंबर कि आप ये गलती एग्जाम में करेंगे फिर. सो एरिड तक आप यहाँ अगर एरिड तक आते हैं आप, रिमेंबर के सीबीयू से आप इन चारों जगहों पर आ सकते हैं, विच इज़ एरिड भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट, एरिड भी इंक्लूडेड है. अब यहाँ पर एरिड तक अगर आप आते हैं तो कितनी कॉस्ट पे करके आए आप? 280. क्यों? क्योंकि आप एरिड से सीबीयू आए थे 140 और 140 फिर सीबीयू से एरिड भी पे करके आए, 140 प्लस 140 इज 280. और एरिड से कितना दूर है गोल? 366, जो कि यहाँ पर भी थी वैल्यू इसकी. एरिड की तो वैल्यू है ही, h of arid is 366. whenever and wherever you encounter arid, the h of n value would still be 366. कॉस्ट चेंज हो रही होगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पाथ से आए. सो इट बिकम 646. फगारस तक आप आए हैं, 140 तक सीबीयू था और सीबीयू से यहाँ तक आने की जो कॉस्ट थी उन दोनों को ऐड किया, दैट बिकम्स 239 प्लस 176 इज द एच ऑफ फगारस. तो ये टोटल हो गया 415, ये हो गया 671, ये हो गया 413. रिमेंबर दीज वैल्यूज, दीज नोड्स, ये जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ आप करेंगे वो ये है कि ये नोड्स अभी भी फ्रंटियर में हैं, दीज आर स्टिल द कंटेस्टेंट्स टू बी एक्सपेंडेड. सिर्फ यहाँ से हम सीबीयू को एक्सपेंड कर दिया तो सिर्फ इसकी नोड्स में से हम चॉइस नहीं लेंगे. जिस तरह 415 है, 671 है, कौन सी आपको लगता है कि एक्सपेंड होगी अब? 413, इट इज़ द लेसर अमाउंट. फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वी मूव हियर 1 2 3. अगेन वैल्यूज आपको पता है किस तरह कैलकुलेट हो रही हैं. 526 इज द अल्टीमेट वैल्यू, 417, 553, 447, 415. अब देखें 415 इज लेसर देन 417, तो 415 को हम एक्सपेंड करते हैं, इससे कम वैल्यू कोई नहीं है. जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 591, 646, 450. अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ए स्टार सर्च हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यू कैन सी के बुचारेस्ट मिल गया है, बट हम हमेशा हर एल्गोरिदम पर मैं आपको ये बात बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ
कि जब तक गोल को एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट नहीं कर लिया जाएगा तब तक हम उसको गोल तसव्वुर नहीं करेंगे। अगर मैं एक ऐसी नोड को सेलेक्ट करूं कि भाई अब ये एक्सपेंड होगी, फिर मैं उस पर गोल टेस्ट अप्लाई करता हूं और अगर वो गोल है तो देन देयर इज द सॉल्यूशन। जैसा कि अब इस सिचुएशन में सबसे कम वैल्यू किसकी है, पिटेस्टी की है 417, जिसके ऊपर मेरा कर्सर है अभी 417। बट यू नो कि हम बुचारेस्ट पर पहुंच चुके हैं, यानी हमारे पास फ्रंटियर में बुचारेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको गोल तसव्वुर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी तक इसको हम फॉर एक्सपेंशन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है गोल टेस्ट भी अप्लाई नहीं हुआ, आपने यहीं पर दिया। इसको जब एक्सपेंड किया तो यू मूव टूवर्ड्स दिस टू दिस। अब इस नोड इस सिचुएशन को अगर आप देखें तो इन सब में से 646, 591, 671, 526, 450, 418, 615, 553, 470, इन सब में से लोअर वैल्यू है 418। रिमेंबर कि मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं क्योंकि बुचारेस्ट इज द गोल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे तो गोल इससे पहले भी मिल चुका था। लेकिन मैं सिर्फ उस नोड के ऊपर जा रहा हूं जिसकी वैल्यू सबसे कम है, गोल हो ना हो। बेशक गोल 10 दफा मुझे मिल जाए, लेकिन जब तक वो नोड सेलेक्ट नहीं होगी गोल की बाय बीइंग द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू, तब तक उसे मैं गोल तसव्वुर नहीं करूंगा। अब यहां पर देखें सबसे लोअर वैल्यू है 418, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए सेलेक्ट करता हूं तो मैं इस पर गोल टेस्ट अप्लाई करता हूं एंड आई फाइंड आउट कि अच्छा दिस इज द गोल एंड आई हैव रीच्ड द गोल। और ये गोल कितनी कॉस्ट पे हम पहुंचे हैं, 418 पे। अच्छा, अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पिटेस्टी को आपने एक्सपेंड किया तो यहां पर आपने देखा कि यार इधर बुचारेस्ट आया है जिस पर पहुंचने की कॉस्ट हमें 418 लगी है, प्लस यहां से गोल कितना दूर है, 0। यहां पर भी हमने ये देखें किया, प्लस गोल कितना दूर है बुचारेस्ट से, 0, 418। नाउ वी आर एट द गोल विथ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू। और इस एंड ए स्टार सर्च इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिदम। क्यों है ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम, इस पे मैं अभी डिटेल में आपको बात बता चुका हूं कि बिकॉज वी हैव अंडर एस्टिमेटेड द कॉस्ट, दिस इज वाई वी हैव रीच्ड एट द, क्योंकि 418 से कम कॉस्ट कोई नहीं है। अभी हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई कर रहे थे तो हमें ये वाला सोल्यूशन मिल गया था ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में। आई एम गोइंग टू द ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च बैक अगेन। ये है ग्रीडी बेस्ट सर्च का, देखें यहाँ पे बुचारेस्ट पे 0 आ गया था और ये हमने एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट भी कर ली थी क्योंकि यहां से गोल 0 दूर था। इसने सिर्फ एच ऑफ एन को यूज किया था, यहां से गोल 0 दूर था, इसने इसको सेलेक्ट किया, इसको पता लगा गोल है, इसने बोला भाई ये गोल आ गया। लेकिन यहां से जब गोल को एक्चुअली पाथ हमने देखा तो इट वाज पेइंग 450, जबकि 450 से लेसर अमाउंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमें किसने ढूंढ के दिया है, ये हमें ढूंढ के दिया है ए स्टार सर्च ने। तो अगर इसके क्राइटेरिया पर हम आते हैं, अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं इसको, एनिमेशन फॉर यू, सो आई विल हैव टू स्विच टू PowerPoint. Wait a minute. Yes. So see, I'm moving towards the next slide, which will be an animation of A star search. So look at how A star search works. Remember that algorithm UCS, उसकी हमने animation देखी थी कि how is it expanding the nodes one by one और फिर वो होता हुआ गया था. Now this is how A star works. Now it's not expanding all of these nodes जो कि frontier पर हैं. It's just expanding those nodes जिससे गोल ज़्यादा करीब है. जैसे ये बैरियर क्रॉस करता है, you will see कि how fast A star search is. There is goal because this was the fastest route. Now there is a comparison between uniform cost search and A star. Uniform cost search ये है और ये A star है. Uniform cost search was the uninformed search strategy, जो कि हम लास्ट क्लास में हमने जिसकी एनिमेशन देखी थी, लास्ट क्लास में.
एट द गोल, राइट। एक दफा गोल पे पहुंच चुका है ए स्टार, दोबारा शुरू होता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को अभी तक गोल नहीं मिला है, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टुवर्ड्स जी ऑफ एन, और वो जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन दोनों को यूज कर रहा है। अभी तक भी यूसीएस को नहीं मिला, ए स्टार को एक दफा मिल चुका है, अब मिला है यूसीएस को, जबकि ए स्टार तकरीबन दूसरी दफा भी इसको सर्च कर चुका है गोल को। सो इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज यूसीएस, and it finds the algorithm, it finds the solution which is the least, which is the cheapest. UCS को सर्च करता है, UCS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि इस स्लाइड से आपको वाज़े हो रही है। So now coming back to our slides, and we are trying to wrap this lecture up today. Admissible heuristic, जिस तरह से मैंने अभी आपको बात बताई इसकी, an admissible heuristic never overestimates the cost to reach the goal, it always underestimates. तो इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपका एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, द थ्योरम इज कि अगर आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो ए स्टार सर्च हमेशा आपको चीपेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ कर देगा। दिस इज द कंडीशन फॉर ए स्टार बीइंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ए स्टार बीइंग द ऑप्टिमल एल्गोरिथम क्यों होगा? जब होगा सिर्फ अगर आपने एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक लिया। अगर आपका ह्यूरिस्टिक ही बेकार है, एडमिसिबल नहीं है, एडमिसिबल का मतलब ये ओवर एस्टिमेट नहीं कर, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, ओवर एस्टिमेट कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में ए स्टार आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल ढूंढ के देने की गारंटी नहीं करता। सो एडमिसिबल होता है क्या है? ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल इफ फॉर एवरी नोड एन द ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज लेसर देन द एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट जो कि मैंने भी सेलेक्ट की है, एच स्टार ऑफ एन, एंड दिस इज द ह्यूरिस्टिक, द एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो जब एस्टिमेटेड कॉस्ट कम होगी एक्चुअल कॉस्ट से, तब तक आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल रहेगा। ठीक है। Straight line distance never overestimates the actual road distance. Yeah, we know, because the straight line distance is the smallest distance between 2 points. Right, so this is another check of optimality. इसकी एक दो मसाइल भी हैं और ए स्टार के साथ, आई एम गिविंग दैट टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटी सी, विदाउट द ग्राफ सर्च। ग्राफ सर्च के अलावा भी ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूरिस्टिक्स फॉर 8 पजल प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जाम्पल 2 ह्यूरिस्टिक में डिफाइन करता हूँ। 8 पजल प्रॉब्लम इज दिस कि आपने इन सब को इस गोल स्टेट में लाना है, 1 को यहाँ ले आना है, 2 को यहाँ, 3 4 5 6 7 8 इस तरह लेके आ जाना है। नाउ रिमेंबर कि 8 पजल प्रॉब्लम इज नॉट समथिंग कि मैं 6 को उठाकर 5 की जगह पर रख सकता हूँ। इट्स अबाउट कि ये फ्री स्पेस है, इसमें मुझे मूव करनी है चीज़ें। अगर मुझे 1 को 3 की जगह पे मूव करना है तो मैं पहले 3 को ऊपर मूव करूंगा और फिर 1 को यहाँ पर मूव करूंगा। दिस इज हाउ दिस 8 पजल वर्क्स। तो अगर मैं लेट सपोज ये कहता हूँ कि इस स्टेट से इस स्टेट तक जाने का एक ह्यूरिस्टिक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स, कि भाई मिसप्लेस टाइल्स कितने हैं ये बताएं। तो अगर ये आपकी स्टार्ट स्टेट है तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक इसका है H1 8, क्योंकि यहाँ पे 8 के 8 मिसप्लेस हैं, कोई भी अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है। एक और ह्यूरिस्टिक भी मैं ले लेता हूँ और वो उसको मैं कहता हूँ टोटल मैनहट्टन डिस्टेंस फ्रॉम डिजायर्ड ऑफ ईच टाइल। मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कितने स्क्वायर्स दूर है अपने पोजीशन से एक चीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 कितने स्क्वायर दूर है? 1 2 3, इसको यहाँ होना चाहिए, तो 1 इज 3 स्क्वायर्स अवे, 1 2 3। सो 1 का मैनहट्टन डिस्टेंस है 3, 2 का मैनहट्टन डिस्टेंस है 1, क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्वायर दूर है, यहाँ पर आना चाहिए 2 को। 3 कितना दूर है? 1 2। इसी तरह से 4 2 स्क्वायर्स दूर है, ये अपना स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस इज 18। तो एक ह्यूरिस्टिक ये भी है कि आपने ये कैलकुलेट किया कि भाई कितने मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं। एक ह्यूरिस्टिक ये भी है कि कितने मिसप्लेस्ड मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है। इन दोनों में से एडमिसिबल कौन सा है? तो ऑब्वियसली वही जो है एडमिसिबल होगा जो कि अंडर एस्टिमेट करे कॉस्ट को। ठीक है। सो वन ऑफ दीज विल बी द एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। सो अ प्रॉब्लम विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड रिलैक्स्ड प्रॉब्लम। अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दूं तो दिस विल बी नोन एज अ रिलैक्स्ड प्रॉब्लम, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस में हटा दूं इस पे से। द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू बी रिलैक्स्ड प्रॉब्लम इज एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। अगर आप रिलैक्स कर दें कुछ चीज़ों को तो फिर कॉस्ट जो है वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक जितनी ही होती है। फॉर एग्जांपल वही कराची हैदराबाद वाली लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आपको घूम के जाना ही नहीं है, आपको जाना ही जहाज से, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो फिर आपका जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक था वही उतनी ही कॉस्ट लगेगी, आपकी उससे ज़्यादा नहीं लगेगी अगर मैं प्रॉब्लम को रिलैक्स कर दूं तो। सो इफ द रूल ऑफ 8 पजल प्रॉब्लम्स आर रिलैक्स सो दैट अ टाइल कैन मूव एनीवेयर, देन H1 ऑफ n गिव्स द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन। अगर रूल में ये कर दूं कि भाई 2 को उठा के कहीं भी मूव किया जा सकता है, 2 सिर्फ यहाँ मूव नहीं हो सकता, 2 को 3 की जगह और 3 को 2 की जगह रख सकते हैं आप। अगर ऐसा है तो फिर दिस विल बिकम एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक।
क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। अगर रूल्स आर रिलैक्स सो दैट द टाइल कैन मूव टू एनी एडजेसेंट स्क्वायर, अगर सिर्फ इतना मैं करूं कि सिर्फ एडजेसेंट में मूव कर सकता हूं, 2 4 की जगह और 4 2 की जगह आ सकता है, तो फिर इस सिचुएशन में H2 जो है वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक हो जाएगा। So let H3 of n be the cost of getting a subset of tiles। इसकी इसी प्रॉब्लम को लेते हुए इसके काफ़ी सॉल्यूशंस और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। डोमिनेंस, अगर H1 एंड H2 आर बोथ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, अगर दोनों ऐसे ह्यूरिस्टिक आपको मिल जाते हैं जो कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट से कम वैल्यू दे रहे हैं आपको, तो 2 एडमिसिबल में से तो आपको सिर्फ एक ही चूज करना पड़ेगा, तो आप उसको चूज करेंगे जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, सॉरी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको 2 एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मिल जाते हैं, अगर आप एक्चुअल कॉस्ट लेट सपोज है 10 और एक ह्यूरिस्टिक आपको दे रहा है 8 वैल्यू, एक ह्यूरिस्टिक दे रहा है 5 वैल्यू, तो आप उसको चूज करें जो कि आपके एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा करीब है, विच मीन्स जो बिगर है 8। अगर 8 और 9 वैल्यूज आ रही हैं तो 9 को चूज करें, तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट ह्यूरिस्टिक विल बी नोन एज द डोमिनेंट ह्यूरिस्टिक। ठीक है, सो इसकी कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम्पल ऑफ वेटेड ए स्टार सर्च भी एक चीज़ है, उसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, सो ये इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ। द असाइनमेंट इज गिवन टू यू एंड दिस इज़ द लेक्चर दैट आई एम फिनिशिंग ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका ले लेते हैं, देन वी विल फिनिश दिस क्लास। नेक्स्ट लेक्चर इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग लेक्चर काइंड ऑफ, एंड दैट इज बेस्ड ऑन एडवर्सेरियल सर्च। Adversarial search is actually adversarial search means, adversary का मतलब ये होता है कि you have an opponent। It's not only about कि start state क्या है और goal state क्या है, it's about कि goal पर जाने से आपको कोई रोक भी रहा है, goal पर जाने से आपको कोई रोक रहा है, विच मीन्स कि आप सिर्फ ये नहीं देख रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आप ये देख रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ विद द इंटेंशंस, विद द इंटरफेरेंस ऑफ अपोनेंट कौन सा है। शॉर्टेस्ट पाथ पे तो आप जाना चाहेंगे ही, बट आप ये देखना चाहेंगे कि भाई वो कौन सा पाथ है जिसके थ्रू मैं ऐसे पहुंचूं गोल पर कि अपोनेंट के नुकसानात मुझे कम से कम हो। दैट इज नॉन एंड एडवर्सरी कहते हैं अपोनेंट को, एडवर्सेरियल सर्च, या दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं गेम्स। गेम्स में होता है बेसिकली ये कि आप स्टार्ट से गोल स्टेट तक जाना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट स्टेट से विनिंग पोजीशन तक जाना चाह रहे हैं, बट द अदर पर्सन इज आल्सो ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट लोकेशन एंड इट्स अबाउट हु रीचेस दैट लोकेशन फर्स्ट। वो आपको इंटरफेयर करेगा, आपको उसको इंटरफेयर करना है, बट द अल्टीमेट गोल इज टू मूव फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट, बट इट्स अबाउट कि आप अपने अपोनेंट के होते हुए किस तरह से आगे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी है जिसमें मिनिमैक्स सर्च, अल्फा बीटा प्रोनिंग है वगैरह वगैरह। ओके, गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक। ऑलराइट, सो इसका ओवरव्यू इज दैट कि व्हाई डू वी वांट टू स्टडी गेम्स। गेम्स आर काइंड ऑफ लाइक द एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस। इफ एज अ ह्यूमन also we call those people intelligent who are more intelligent at games। मैं उस शख्स को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं कहूँगा जो कि एक नॉन काम को तेज़ी से कर लें, कि भाई आप ये बता दें 45 into 56 कितना होता है और आप बड़ी तेज़ी से बता दें। आई विल नॉट कॉल यू इंटेलिजेंट, आई विल कॉल यू ओनली फास्ट, but I will call you intelligent when given with a certain problem, a very well defined problem, especially within a game, you can solve that. If I give you a chess problem and you solve it within a minute, I will call you intelligent। but बेशक आप कितनी ही ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर लें या जितनी ही ज़्यादा अच्छी टाइपिंग कर लें, I will not call you an intelligent person। so games are what define it's kind of like a thing जिससे हम measure कर सकते हैं intelligence। Games are those things, and not just recently, but it has been the epitome of intelligence, the measurement of intelligence, the metric of intelligence from very early ages। काफ़ी पहले से गेम्स को जो है इस नोयत से देखा जाता था कि how intelligent a person is।
There are many games, especially that we would like to study would be some of the board games, especially chess, checkers, go, bridge, poker, card games, and so on. So there are some early days and some historical advances in games which I am skipping as of now. I want to move towards the actual algorithm and working of an algorithm. How do we think that computers can think? So what kind of games are we going to study are going to be 2-person games. हम 2-person गेम को स्टडी करेंगे. 2-person का मतलब ये है देयर विल बी 1 person and there will be the other person which will be the opponent. Both of them will be the adversary of each other, the opponents of each other. So those kinds of games we would like to study. Now इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लेंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि 22 प्लेयर्स का गेम किस तरह से हो सकता है, और हम ये भी नहीं देखेंगे कि इससे ज़्यादा टीम वर्क वाले गेम कैसे होंगे. सो नो टीम्स गेम्स, वी विल जस्ट बी स्टडी इंडिविजुअल गेम्स. दूसरी प्रॉपर्टीज़ की ये होगी कि प्लेयर्स अल्टरनेटिव मूव्स हम देंगे. हम ऐसे गेम्स को स्टडी कर रहे होंगे जिसमें एक प्लेयर एक मूव करेगा फिर रुक जाएगा अनलेस द सेकंड प्लेयर हैज़ डन हिज मूव और हर मूव. ज़ीरो सम गेम हम लेंगे. ज़ीरो सम गेम ऐसे गेम को कहा जाता है कि अगर एक बंदा लूज़ करेगा तो दूसरा गेन करेगा. हम ऐसे गेम्स को स्टडी नहीं करेंगे कि भाई दोनों ही जीत गए, ठीक है, कि दोनों ड्रॉ कर लिया दोनों ने. ऐसे गेम्स को हम स्टडी नहीं करेंगे. ऑल्दो कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें हम कहेंगे कि ये गेम अब आगे नहीं बढ़ सकता, जिसको हम ड्रॉ कह देते हैं, स्पेशली इन चेस. बट हम ऐसे गेम्स को स्टडी करेंगे जिसमें एक प्लेयर का लॉस दूसरे प्लेयर का गेन होता है. इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप एक पीस मार देते हैं एक बोर्ड गेम में किसी का, तो वो पीस उस बंदे की सिचुएशन से हट जाता है और उससे आपको फ़ायदा होता है. ये ना हो कि एक प्लेयर का कोई लॉस हो गया लेकिन उससे आपको कोई गेन ना हुआ, ठीक है. सो हम ऐसे गेम्स को स्टडी करेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी गेम जिसके अंदर ये ज़ीरो सम गेम अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है. और हम ऐसे गेम्स को स्टडी करेंगे जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि छुपी हुई हो, या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि जिसका एक्सेस एक प्लेयर के पास है लेकिन दूसरे प्लेयर के पास नहीं है. हर एक चीज़, पूरा बोर्ड हम दिखा रहे होंगे, हर एक चीज़ उसकी नज़र आ रही होगी. यानी कोई ऐसा गेम नहीं है कि भाई कार्ड 52 है लेकिन एक प्लेयर समझता है 52 है और दूसरा प्लेयर समझ रहा है 51 है. ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली ऑल इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी डिसिमेटेड टू बोथ ऑफ द प्लेयर्स. चांस इन्वॉल्व नहीं होगा. चांस पे भी हम स्टडी करेंगे लेकिन फ़िलहाल नहीं, बाद में करेंगे जब हम पूरी गेम्स की स्टडी कर लेंगे. चांस इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कोई रोलिंग ऑफ द डाइस नहीं हो रही होगी ना. कार्ड्स की कोई इस तरह की गेम हम नहीं देखेंगे जिसमें चांस के ऊपर है कि भाई आपके पास कौन सा कार्ड आया. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. टिक टैक टो का गेम है जैसे, या चेकर्स का गेम है, या चेस का गेम है. दीज आर सम ऑफ द गेम्स जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं. और नीचे जो आपको गेम्स नज़र आ रही हैं जिसमें नॉट लिखा हुआ है, दीज आर द गेम्स जिसके अंदर या तो चांस इन्वॉल्व है या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है. जिस तरह रॉक पेपर सीजर है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ चांस गेम. सॉलिटेरी इज़ अ चांस गेम. बैकगमोन और ब्रिज के अंदर भी आई थिंक, या बैकगमोन के अंदर जो है वो डाइस रोल की जाती है, विच मीन्स कि यहाँ पर भी चांस इन्वॉल्व है. तो इन गेम्स को हम एज ऑफ नाउ स्टडी नहीं करेंगे. सो हाउ डू वी कंसिडर प्लेइंग गेम्स? वी कंसिडर दिस. जब भी आपके पास कोई मूव आता है करने को तो आप क्या करते हैं? आप हमेशा ये काम करते हैं, आप कंसिडर ऑल द लीगल मूव्स यू कैन मेक. यहाँ से आप क्या क्या मूव्स कर सकते हैं आप वो सोचते हैं. सबके चॉइसेस को, मूव को कैलकुलेट करते हैं कि भाई यहाँ के बाद मैं कहाँ कहाँ चला जाऊँगा, जिसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं. कि भाई अगर मैं ये मूव करता हूँ तो क्या होगा, ये मूव करता हूँ तो क्या होगा, ये मूव करता हूँ तो क्या होगा. और हर मूव की क्वालिटी को एवेल्यूएट करेंगे कि भाई सब मूव्स में से बेस्ट कौन सा है मेरे लिए. उसको मूव को हम चलेंगे, जो भी चाल है हमारी, और फिर वेट करेंगे दूसरे अपोनेंट के लिए कि वो काम करे. और दूसरा अपोनेंट भी एग्जैक्टली यही सारे काम करता है, ठीक है. सो इसमें की प्रॉब्लम्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको रिप्रेजेंट करने में, वो रिप्रेजेंट बोर्ड को कैसे करें हम. दिस इज़ नॉट जस्ट एन स्टेट जिसका नाम लिख दिया हमने और कॉस्ट लिख दी. रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा मसला आ सकता है. नेक्स्ट बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करना कि भाई यहाँ से नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा मरहला है. क्योंकि तकरीबन 15 मूव्स अगर आप कर सकते हैं तो 15 दफ़ा बोर्ड को आप डिज़ाइन नहीं करना चाहेंगे. और इवैल्यूएशन कैसे करें, हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि एक पोजीशन अच्छी है या बुरी, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें. क्योंकि अब यहाँ पर ग्राफ नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और हम कहेंगे कि दिस इज एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक. वी हैव टू कम अप विद सम क्रिएटिव सॉल्यूशंस, राइट. सो इसमें भी हम इवैल्यूएशन फंक्शंस की बात करेंगे. यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.
थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, उसके बाद राइट अराउंड 15-20 मिनट्स का गैप लेते हैं और उसके बाद लैब का सेशन स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास. एंड असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा. एंड लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स एंड देन वी विल कम बैक फॉर द लैब सेशन. थैंक यू वेरी मच.